علم کی روشنی یہاں بکھرتی ہے، جہالت کی ہر دیوار گرتی ہے، خوابوں کو تعبیر یہاں ملتی ہے، محنت سے ہر راہ نکلتی ہے۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، اور جواب جس کو تو نے بخشی ہے ہمت، اسی سے میں تیری ثنا کر رہی ہوں۔ سرجانی کیمپس، سیکنڈ کیمپس، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، 6, 7, 8 کالج، یونیورسٹیز، I am honored Auckland Grammar School, میڈم فریاد۔ یہ جو سلسلہ ہے آج کا، ابھی ہم انشاءاللہ یہاں پر بچے آئیں گے، ویلکم بھی کریں گے۔ پیش آئیے گا۔ کیا بات ہے، واہ! حیدر کیمپس، علامہ مفتی حیدر، پرنسپل آف آکلینڈ گرامر اسکول حیدر کیمپس۔ علامہ مفتی حیدر صاحب کے لیے کہ وہ اسٹیج پر یہاں پر آئیں۔ I hope you all are doing well. It's a very pleasure for me because I am standing in front of you. Or as you all know that it's the first day of Auckland Grammar School Hyder campus. It's a very great opportunity for me, and I just would like to tell that it's a very great opportunity for all of you because you all know that it's the Auckland Grammar Secondary School. It's not a school. I just would like to say that it's not just a school. I just want to say that and clarify that thing. Behind this school there are a lot of mention, there are a lot of dedication. So it's the first day of Auckland Grammar School. You all know that it's a opening ceremony, and we are providing, we are serving for this nation, and if I would like to, I just want to go in past when we start this school. You all know that ہم نے اسکول کا جو آغاز کیا وہ تقریباً 2009 کے اندر ہم نے اپنے پہلے کیمپس کا آغاز کیا، اور یہ وہ پیچھے ایک جدوجہد تھی اور ایک سوچ تھی اور وہ ایک لگن تھی کہ اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا، دنیاوی عزت بھی حاصل کر لی، مال و دولت بھی حاصل کر لیا، لیکن فقط یہی دنیا میں آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے، بلکہ دنیا میں آنے کے مقصد بہت سارے ہیں۔ اس مقصد کے پیچھے اگر میں بات کہوں تو وہ یہی تھا، ایک ڈیڈیکیشن تھی، اور مقصد یہ تھا کہ خود تو بہت کچھ حاصل کر لیا لیکن اپنی قوم کے لیے کچھ سرو کرنا ہے، ان کے لیے کچھ کام کرنا ہے، اور کچھ ایسے کام کر جانے ہیں کہ اپنے جب دنیا سے چلے جائیں اس کے باوجود بھی ہمارا نام باقی رہے، اور وہی مقصد تھا جس مقصد کے پیش نظر اس اسکول کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکلینڈ گرامر اسکول کے جس کی بنیاد 2009 کے اندر فقط ایک کیمپس کے ساتھ رکھی گئی تھی، آج اس کے بے شمار کیمپس ہیں۔ فقط اسکول ہی نہیں، we are providing a lot of facilities in this campus، and ہمارا آج کالج بھی ہے۔ ہم یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ اب جا چکے ہیں۔ ہم یہاں پر جب ہمارے بچہ ایک آتا ہے تو وہ فقط چاہے پلے میں آئے یا ایک نرسری میں آتا ہے تو ہم اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ اس بچے کو اس کی بنیادی تعلیم سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک تمام تر مراحل میں اس کی معاونت کریں۔ ہمیں اس ملک کی کوئی قدر نہیں، ہمیں قائد کی قدر نہیں، ہم اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے دل و جان سے حفاظت کریں اور زندہ ایک
करें। मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इस शहर पर ख़त्म करूँगी। दिल हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, हम सबकी है ये शान। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करती हूँ। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए शीशा तलाश कर। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। अल्लामा इकबाल और रौनक को सियालकोट में पैदा हुए, आपने आला तरीन सियालकोट से हासिल की। आपने छोटे बच्चों के लिए बहुत सी नस्लें भी लिखी, आपने उर्दू और फारसी ज़बान में शायरी भी की, आपने कायदे आज़म उनके अजीज साथियों के साथ पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम भी शेर से करती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, जब समंदर मिल जाए तो दरिया तलाश। मौजूद जनाब मेहमानान गिरामी और अजीज दोस्तों साथियों, आज की एक छोटी सी पुरवकार तकरीब को तमाम मेहमानान गिरामी ने रौनक बख्शी। आके हमने जिसको बुलाया वो तमाम लोग, खासकर टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इरशाद मुगल साहब खासकर में, और अली भाई हमारा अली, और नदीम भाई, रमजान मलिक साहब, शेख बारी साहब, आमिर भाई, मौजूद तमाम मेहमानान गिरामी। जो लोग रह गए, मुझसे गलती हो गई नाम लेने में, हमें भूल गया, तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सबका कीमती टाइम है और खवातीन और आजाद का भी कीमती टाइम है। ऑकलैंड ग्रामर सेकेंडरी स्कूल आज ये 8वें कैंपस की बुनियाद हमने रखी है। हमारा मकसद तालीम को उजागर करना है, चाहे वो दही इलाके हो, मज़ाफाती इलाके हो या तरक्की याफ्ता इलाके हो। और आज हमें इस इलाके में ऑकलैंड की ब्रांच कायम करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई, यहाँ के बहुत सारे पेरेंट्स से हमने दरखास्त की थी कि उस्मान साहब यहाँ पर ऑकलैंड की एक ब्रांच होना चाहिए। ऑकलैंड एक मुकम्मल एक किताब का नाम है, एक ऐसी किताब का नाम जहाँ पे तालीम का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ, खत्म भी नहीं होगा। एक ऐसा इल्म जिसकी जद्दोजहद में तमाम लोग रवा दवा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाके के एक एक बच्चे को वो तालीम देंगे जो एक बच्चा मिसाली बनेगा। ऑकलैंड स्कूल एंड कॉलेज की सरजानी टाउन के अंदर 2 ब्रांच, 2 कॉलेजेस भी हैं ऑकलैंड के, जहाँ पे हम इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BA BCom हम ऑकलैंड ये कराते हैं। और माशाल्लाह कॉलेज में भी हमारे पास 400 बच्चों की तादाद एक कैंपस के अंदर है। और हमारे तालीम में सिलसिला यही नहीं खत्म हो रहा, बल्कि इस इलाके टेसा टाउन लियारी के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी 2000 गज के ऊपर तामीर हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके का, इस इलाके का एक एक बच्चे को हम वो तालीम देंगे जो हमारे बच्चे जिसकी जद्दोजहद के लिए अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं। माँ बाप इतनी मेहनत से कमाते हैं और बच्चे अगर उसके ऊपर तालीम हासिल ना करें तो बिल्कुल बेकार है। ये सारा क्रेडिट उस्तादों पे जाता है। एक आलिम है, फाजिल है और एक एडुकेट भी है वो, तो वो इस स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप देखें कि जिस इमारत की बुनियादें इतनी मजबूत होती हैं, वो इमारतें गिरती नहीं है, बल्कि वो और प्लाजा पे प्लाजा बनाती चली जाती हैं। एजुकेशन होने के बावजूद वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उनके हकूक की जंग भी लड़ रहा हूँ, उनके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, और उनको बहुत सारी मामलात के जो उनकी तालीम है उससे हटाकर उनको आगे लेकर जा रहा हूँ। जो उनकी हक बनता है, जो उनका पोस्ट बनती है, उनको वो पोस्ट दिलवाता हूँ। अब्बासी साहब जो अपना सिलसिला लेकर चले हुए, इनको कामयाबी दे अल्लाह ताला। जहाँ इनको हमारी जरूरत पड़े हम इनके साथ हैं। बाकी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। खूबसूरत प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन के हवाले से हमारे मोहतरम उस्मान साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया है, और उनकी टीम ने, जैसा कि मैंने सुना कि इस इलाके में रोजी गोट है, मैं तो ये कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि कच्ची आबादी में जो लोग रहते हैं वो मजबूत, बहादुर और निडर होते हैं। क्योंकि शहर के अंदर तो हर चीजें, हर सहूलतें उन्हें मिलती हैं, लेकिन गांव गोड़ के जो लोग हैं वो अपना सुबह सवेरे फजर के टाइम उठते हैं, नमाज रोजा के बाद यानी कि अपने कारोबार में निकल जाते हैं, और अब अपने बच्चों की तालीम के लिए जो कि वहाँ वसाइल ना होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं इन कामों के हवाले से जो वेलफेयर के हैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। जो वेलफेयर के कामों में कराची नहीं मुल्क भर में एक जानी पहचानी शख्सियत है, उनकी खिदमात वेलफेयर के हवाले से उस्मान अब्बासी साहब की हैसियत ब्रदर एडवोकेट हम जानते ही हैं। असातिज़ा का एहतराम दिल और जान से करना। हमारे मजहब में हमें 3 बातें बताई गई कि 3 बाप है तुम्हारे। एक वो बाप जिसके तुम सुलभ से पैदा हुए, यानी तुम्हारे ये जो पेरेंट्स हैं। दूसरा बाप
उस्ताद होता है। तीसरा हमारे यहाँ जो मजहबी रिवायात हैं वो ये है कि ससुर भी जो है वो बाप के ही दर्जे में होता है, इनका है एहतराम। अब आओ अपने दीन की तरफ। बेटा हमारा दीन हमें बताता है कि ये कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस्ताद हैं, वो कहते हैं इकरा। आज यहाँ के मुझे बड़ी खुशी हुई, मंगो पीर टाउन का एक हमें तोहफा दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो हमेशा माजी में तमाम शोबाजात से नजरअंदाज था, क्योंकि जो माजी में यहाँ जो जिम्मेदार गुजरे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खास तौर पर अब्बासी साहब ने कहा कच्ची आबादियों और देही इलाकों में जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। सिटी है, सिटी के बच्चे भी तेज हैं, मैं समझता हूँ कच्ची आबादी और देही इलाकों के बच्चे हैं उनका मुकाबला कहीं भी नहीं है, क्योंकि औरंगी टाउन की कच्ची आबादी हो या मंगोपीर टाउन की कच्ची आबादियां हो, अगर वसाइल वालिदैन के पास कम होते हैं, जो बच्चे निकलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अब्बासी साहब ने जो ऑकलैंड स्कूल्स एंड कॉलेज के जरिए जो इन्होंने अभी कहा, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं अपील करता हूँ खास तौर पर मंगोपीर टाउन और रोजीकोट के गार्जियन से, वालिदैन से कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दें, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तालीम हासिल करें आपको चीन जाना पड़े। आप ये बताएं कि आपको कुछ अच्छे से कोई शेर आता हो, कोई कुछ सुनाएंगे आप? ओहो, तालियां बजा दीजिए। आपका क्या नाम है? इंजिला, कौन सी क्लास में क्या पढ़ती हैं आप? क्लास 6। क्या सुनाना पसंद करेंगी? कोई शायरी आती है? तीसरी में ना सांस लिए 50 से 1 तक आपने उल्टी गिनती गिननी है। चावल बनाते बनाते खीर बन गई, ढक्कन खोल के देखा तो मिस की तस्वीर। इल्म की रोशनी यहाँ बिखरती है।